अब देखिए ऑन हो गया। ये surface integration, I am saying that surface integration can be represented as double integration as f dot n cap ds, or you can also write double integration f dot ds. In this integration, we will integrate over the surface. Earlier, we are integrating over the plane, either xy plane, yz plane, xz plane, right? For solving this one, there are the two things. First one is n cap, second one is ds. Here n cap is defined as the outward normal to the given surface S, and that can be found by del of S upon modulus of del S. It's clear? Now the second thing is ds. This ds. For solving this ds, we have the three formula, and this formula means we have the projections of ds in terms of either in xy plane. If xy plane, we can write dx dy upon n cap dot k cap modulus of this one. Second one in xz plane, third one is yz plane. Okay. Now the question is which projection we will take. There is no something as a formula or no rule, but we have some tricks. For applying that tricks, we can solve the integration. Trick number one: if the function is, let us suppose xy, function means f dot n cap. Here function means f dot n cap. If this is function of xy, then I can take dx dy, xy plane. If function is yz, I can take dy dz. If function is xz, I can take dx dz. Rule number one. You can not say rule. This is the trick. Trick number two. Convert the integral into two variable. We will take any projection such that whole integration will convert into two variable. For example, if f dot n cap is x into y plus z, and n cap is xi plus yj plus zk. So you can see that if I can take n cap dot I cap, that is x, and that will be in division. So I can take yz, this one. If I take this yz, this will convert into two variables. In some cases, it may be possible that if we can take any of these projections, integration always have the three variables. In that case, we will find the third variable in terms of other two variable using the surface equations. बताएं, it is clear or not? Yes, sir. मेरी बात आपको clear हो गई? We are taking some example. Let us suppose we have a question double integration s f dot n cap ds, and where f is given as 18zi minus 12j and plus 3yk, and s is the part of s is the part of the plane 2x plus 3y plus 6z equal to 12 in first octant. Okay, it is like a triangle. If you have a in a room, if you put a triangle, we're taking the intercept on x-axis, y-axis, and z-axis, and just make a triangle. That triangle is basically the surface. Is it clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first we will find out the n cap. What should be the n cap? What is n cap? We can find out n cap by this given surface. Yes, sir. Del S. Del S means del of this. Yes. क्या हो जाएगा? Yes. This is 2i plus 3j plus 6k. Is it clear or not? बताए. What is n cap? N cap means del S upon modulus of del S. Okay. ये हो जाएगा 2 to the 4 9 कितना है बताएं? 1 upon कितना? 7 हो जाएगा? 7. Yes, 7. sir. 2i plus 3j plus 6k. We get this one.
Now we will find out f dot n cap. F dot n cap is 18 to the 36. Yes, sir. So this is 36 Upon 7. xz. ओके 1/7 बाहर लिख देंगे पूरे के, ठीक है ना। दिस इट इज 1/7 एंड माइनस 36, ओके, एंड प्लस 18y। बताए Sir, X1. Sir, X1. नहीं सॉरी, दिस इज 36z। बताए अभी क्लियर है क्या? 36z माइनस 36, ये था आपका 36 था, नहीं 36 माइनस 12 36 माइनस 36 प्लस 18y इट्स ओके। Yes, sir. Yes, sir. Now take the integrations. This is double integration s, where I take 1/7 as outside. 36z minus 36 plus 18y, okay, right, ds. Yes, sir. This is ds. Now tell me, which projection we should take? Which projection? xy, yz or xz? बताएं, tell me. yz. So we can write this ds will be equal to dy dz upon n cap dot I, modulus of this one, ठीक है। Yes, sir. n cap dot I, n cap dot I हो जाएगा आपका 2/7, ओके, Yes, sir. dy dz upon 2/7। दिस इज इक्वल टू 2 से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 डबल इंटीग्रेशन 36z माइनस 36 प्लस 18y एंड दिस dy dz। बताएं क्लियर है क्या? Yes, sir. Now we want to write the limit of this one. If you take the yz this one, तो this will come say triangle. इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा आपके पास? ट्रायंगल आएगा like this. Let us suppose this is y, this is z. Put here in this curve, put x equal to 0. We will get 3y plus 6z equal to 12. Okay. You can take say y plus 2z that is equal to 4. 4. क्लियर है क्या? Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑन y कितना हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑन y क्या हो जाएगा? सॉरी, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 4 हो जाएगा। Yes, sir. दिस हो जाएगा 2 एंड ये आपके पास यहाँ से लाइन एक बन जाएगी हमारे पास दिस वन। बताया भाई क्लियर है क्या? Yes, Like sir. हाँ, वाई जेड में देखना है तो x 0 होगा ना। नाउ राइट द लिमिट फॉर दिस वन, नो प्रॉब्लम। ये तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लिमिट बताएं। y एक्सिस पे कितना था हमारे पास? y एक्सिस पे था 4, ठीक है ना। y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 0 to 4। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. एंड z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 0 to 2। If anywhere in this function, anywhere x is coming, then put x equal to 0, because we are taking yz plane. No, sorry, not 0. We will put the value of x in terms of this one by this equation. अच्छा मतलब ऐसी वैल्यू ये y और z के फंक्शन रखनी है। हाँ सरफेस, यही मैंने बताया ना, इफ वी कैन नॉट कन्वर्ट देन वी विल पुट वैल्यू फ्रॉम द गिवन सरफेस। या तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए
या फिर वैल्यू आपको सरफेस से लिखना है। मेरी बात क्लियर हो गई क्या, बताएं एनीवन? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं भाई। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू, सॉरी 0 to 2 नहीं, z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना 4 माइनस कितना आएगा, इक्वेशन आएगी ना यहाँ पे, तो 4 माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना, अच्छा इक्वेशन आएगी ना? 4 माइनस वाई अपॉन 2, क्लियर है क्या? हाँ सर। ये इसकी वैल्यू बताइए इंटीग्रेशन की क्या आ जाएगी यहाँ से, फाइंड आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. इसमें आंसर लिखा है मेरे पास 24 लिखा है, इसको चेक करके देख लेना जरा क्या आंसर आ रहा है, 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे सोल्व करना है। Yes, sir. Yes, sir. If the given surface is in the plane like xy plane, yz plane or xz plane, in that case directly we can take n cap equal to perpendicular to that plane, right? But that should be the outward to the given body, right? Clear समझ में आ रहा है क्या? अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर लेते हैं स्टोक्स थ्योरम्स। Again we will come to the same topic. Okay, Stokes theorem. This theorem is nothing else but the extensions of Green theorem. The Green theorem is for 2 variables. This is for 3 variables. Clear? This theorem for 3 variables. जो आपकी वो थ्योरम थी वो क्या थी, आपकी 2 वेरिएबल थी, 2 वेरिएबल थी ना वहां पे। ये 3 वेरिएबल के लिए है, and it may be possible the question may be same in both the case. Same question may become as a Green theorem and same question may become as a Stokes theorem, right? Okay. We are saying let S is open surface bounded by curve C, then line integrations on C f dot dr, that is equal to double integration S curl f dot n cap ds. This is the theorem. Here is one word is coming as open surface. What do you mean by open surface? First you just understand this thing, open surface. Let us suppose we have a dish, एक आपके पास डिश है, तो डिश इज क्या है आपके पास, ओपन हो गया, दिस इज द सी, ये सी होगा एंड दिस रीजन इज एस, क्लियर है, सर्कुलर डिश, ओके। Yes, sir. Yes, sir. If the figure is 2 dimension, there is no problem, the same figure will be the C and same figure will be for surface, okay. Do you have any problem? Like triangle, same figure, the boundary will be C and the inner area will be S, clear है? Yes. Yes, sir. Now we come to 3 dimension surface. Let us suppose I have the hemisphere. Do you know hemisphere? Yes, sir. This is the hemisphere. Yes, sir. कटोरा टाइप मान लीजिए, है ना, कटोरी आपके पास। हाँ. तो जो आपका जो कटोरा जो होगा, इसकी जो ये एज होगी, दिस एज, ये तो दिस इज सी एंड ये दिस है, ये आपकी क्या होगी, सरफेस होगी एस, एंड वी आर सपोजिंग दैट दिस सी इज ओपन। ओपन मतलब दिस होल सरफेस इज बाउंडेड बाय दिस सरफेस सी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? सर ये जो शेप बनी है वो ऐसे. एस है, जो ऊपर का जो आपका स्पेरिकल जो पार्ट है दैट इज एस एंड जो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज सी, और हम ओपन का बोला उसको हम ओपन मान के चल रहे हैं, क्लियर है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लेट अस सपोज 3 डायमेंशन फिगर एज क्यूबॉइड,
मान लीजिए आपके पास क्यूबॉइड है, दिस वन, ये है क्यूबॉइड. हाउ मेनी सरफेस इन द क्यूबॉइड? बता सकते हैं कितने सरफेस होते हैं क्यूबॉइड में? 6. 6. 6. Out of these 6 surface, we will suppose always the lower surface is open surface. Lower surface is open. ठीक है? तो we'll take the line integration along this this one, right? Lower surface. यहाँ पे आप line integration ले लेंगे, ठीक है? This one. And rest 5 surface we will consider for the surface integration. क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या आपको? फिर इसमें नीचे वाला पार्ट ही लेते हैं. By default हम डाउन वाली सरफेस लेंगे until unless there is a given open surface is given. If open surface is given any other surface, then we will take that one. Otherwise lower part. This is the cylinder. How many surface are there? How many surface in cylinder? 3 surface. 3. S1, S2, और 3 नीचे. this one. Always we will suppose this is open surface. Open means we will take this one as C. This lower surface as C, upper surface and this. We will find out the surface integration for two surfaces and line integration for lower circle. क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? तो आप इधर से सपोज कर सकते हैं वी आर सेइंग ओपन सरफेस बाउंडेड बाय कर्व सी. मतलब जो भी आपका पूरी सरफेस है वो सरफेस जो उसकी बाउंड्री होगी वो बाउंड्री कब आएगी? जब हम उसको ओपन करेंगे. अगर वो क्लोज होगी तो बाउंड्री नहीं आएगी. बात क्लियर है कि नहीं? कह सकते हैं ना जैसे आपके पास वेल है, कुआ आपने देखा उसके ऊपर जो बाउंड्री है वो दिस वन, तो हम कहेंगे वो आपके पास क्या होगी? सरफेस होगी. दैट इज द ओपन सरफेस. तो उस बाउंड्री जो होगी, बाउंड्री ऊपर वाली बाउंड्री हो जाएगी, बाकी सारी सरफेस हो जाएगी. क्लियर है? गिलास होता है, जैसे गिलास पानी पीते हो सिलेंड्रिकल, आप कोई भी वो ले ले, कप, ठीक है? तो अगर आप कप है, कप की बाउंड्री क्या बोलेंगे? जो ओपन सरफेस उसी को बोलोगे ना बाउंड्री. ठीक है ना? जो आपकी क्लोज है, दो सरफेस आपकी क्लोज, एक ओपन. क्लियर है? मेरी बात क्लियर हो गई? These Stokes theorems we don't required in the question paper. As we discussed earlier that section C there will be the two part, and out of two part we have to attempt one part. And I already said that one part will be from the vector differentiation, right? But we are doing this once because it may be in some cases the vector differentiation question may not solve, right? So other parts will not be blank. Is it clear? Third part where from each unit there will be the one questions, and each question there are the two part, and you have to attempt one part. Earlier there may be the three part and you have to attempt two part, but from last 2-3 years there is the two part and you have to attempt one part only. Okay? If all the things are well, in that case that part will be from the vector differentiation. There is no problem. We don't require this one. Okay? But we are taking the other side also. Maybe that question may not solve, right? In that case, the second part may be either from Green's theorem, right, or Stokes theorem, and one more theorem, that is divergence theorem. So divergence theorem in general comes in section B. Okay? Yes. And this Stokes theorem maybe comes in section B. And there may be we have some extra let us suppose part to solve. If there is any problem in part section B, unit 1, 2, 3, right, we can attempt this part. But I am supposing that we will not solve this question fully. There may be it may be possible in some cases you can solve, but I am supposing that from this part we should attain at least 60% marks. क्लियर है कि नहीं बताए? स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. स्ट्रेटजी वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, sir. So I am saying that if there is a question of verification of Stokes theorems, and we can find the value of integration either by left hand side or from right hand side.
So at least 60% marks we will get. First we write the theorem, then we will find out. Let us suppose I am solving this part, and we can also find out curl f n cap like this, something we will find out. We will get 60% marks. Clear है कि नहीं? And if the question is known question, you can solve full question, no problem. But because the number of integration in general may be the more than 2, 3, 4 like this, that's why I am not supposing that you will solve the whole the question. Clear? In case of like this, if I am taking this cuboid, how many integration you will solve? 5 integration for surface integration, right? And 4 integration for line integration. Clear? Yes. That means you will solve 9 integration, then we will get the full 10 with the 10 marks. That's why I am supposing that we will take the maximum marks by minimum effort. बताए? कोई कंफ्यूजन, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताए भैया, एनीवन? स्ट्रेटजी क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? But sometimes it may be possible the questions of green sonams may be come in this here. For example, क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें. ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ड्रॉप कर दें, ड्रॉप आइडिया कर दें कि हमें करना ही नहीं है. ऐसा नहीं है. देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम. Sometimes in papers 2 dimension यानी 2D questions comes, but the question will solve you have to solve by the Stokes theorem. Okay, can I verify Stokes theorem for f is equal to, let us suppose I say 2xy minus x square I minus x square minus y square g, this one, and given as C is the boundary enclosed by the curve y square equal to x and x square equal to y. Do you remember that this type of question we also solve in green theorem? Yes, sir. Yes, sir. But here the Stokes theorem, no problem. Okay. First we draw the figure. This is the figure. X-axis, y-axis. Okay. Y square equal to x. This one. Okay. Yes, sir. And this is. ये बन जाएगा. तो क्या चेंज हुआ? The change is only that right hand side. In the green theorem, you remember that in green theorem we are finding the partial differentiation, right? In this case, we will find out the curl f dot n cap, right? What is n cap in this case? N cap is k. xy प्लेन का n cap क्या होगा? k ही होगा ना? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कर्ल एफ. कर्ल एफ फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट कर लीजिए. बताइए जरा क्या आएगा. आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड. ओके. एंड यहाँ पर आपने लिख दिया 2xy minus x square, and this one is minus of x square minus y square, this 0. अब अगर वो हमें कुछ भी इसमें ना आए तो एटलीस्ट वी कैन फाइंड आउट कर्ल एफ. क्यों भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी को. सकता है ना कम से कम. हाँ, तो ये बेसिकली हम सारा काम क्यों कर रहे हैं कि हमारा वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रहे किसी भी केस में. क्योंकि हमें क्या, जो हमें अपनी प्रिपरेशन है हमें दोनों केस के लिए करनी चाहिए. गुड के लिए कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन हो, और कभी कभी हमें दूसरी साइड में भी कई थिंकिंग उसमें करना चाहिए. क्लियर है कि नहीं? बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो आपने कहा 4x क्या आ गया. आफ्टर दैट वी विल राइट द थ्योरम. ठीक है ना? आप लिख देंगे यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम. राइट स्टोक्स थ्योरम. ठीक है ना?
स्टोक्स थ्योरम लिख देंगे। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों भाई? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर सी दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इफ सरफेस इज गिवन वी कैन आल्सो फाइंड आउट द एन कैप। अगर सिंगल सरफेस है तो एन कैप फाइंड आउट हो जाएगा। Yes, sir. और अगर आपके पास मोर देन वन सरफेस है, लाइक क्यूबॉइड हुआ आपके पास, या आपके पास ये हुआ सिलेंडर हुआ, तो उसमें आपको फिर सरफेस बाय सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. आउटसाइड नॉर्मल चाहिए, आउटसाइड नॉर्मल का मतलब बॉडी से बाहर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना? आउटसाइड। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास सिंगल इंडिकेशन राइट हैंड साइड होगा, तो राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर दे कम से कम, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो राइट हैंड साइड मेरे पास हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका -4xk डॉट के कैप ds, ठीक है ना? Yes, sir. as surface, because this is a two-dimensional figure, and in two-dimensional figure always you can write ds is equal to dx dy. If xy plane, according to plane, you can write that one. Yes, sir. And you can also find this value of this one is from ds is equal to, I can say here, dx dy upon n cap dot k. You can see that the value of this one is same. n cap भी k dot k क्या होगा? 1 हो जाएगा। Yes, sir. दिस इज बेसिकली डबल इंटीग्रेशन। अब हम आ गए r पे, एंड ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स बार हो गया x dx dy। बताए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन s एंड r? s इज द सरफेस, r इज द प्रोजेक्शन इन एनी प्लेन। क्लियर है? ओके। I am saying that ds is equal to dx dy upon n cap dot k cap, and here n cap की वैल्यू क्या है? k cap है, तो k dot k cap। अरे बेटा अपना वो बंद कर लो, कौन है? अंकित चौरसिया, अंकित चौरसिया। कर दिया मैंने, कर दिया, कोई बात, नो प्रॉब्लम। एन कैप मैंने, एन कैप क्या हो गया? एन कैप हो गया के कैप हो गया एन कैप, Yes, sir. तो के कैप डॉट के कैप 1 हो गया, तो dx dy आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो डायरेक्टली यू कैन पुट द सेम, है क्या? बताओ क्या पूछ रहे हैं? r, r, right, r, okay. What is the difference between s and r? S is the surface, r is the projection in given plane. Because this figure is already in xy plane, so here s and r both are same. क्लियर है क्या? Yes, sir. तो आपने यहाँ पे ले लिया, ये ले लीजिए, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, ओके, एंड पुट द लिमिट। तो आई कैन राइट 4 x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 to 1 आ जाएगा। इसमें 1 1 आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. 1 1 आएगा, तो x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू लोअर कर्व क्या है ये वाला, दिस वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, Yes, ऊपर कर्व हो sir. जाएगा रूट x, एंड दिस इज x dy dx। बता, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? एनीवन? No, sir. मुझे ख्याल से आराम से सोल्व हो जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Sir. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास जो लिखी है -3/5, फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हमने क्या है कि अगर हमने इसमें से आउट ऑफ दीज टू साइड, अगर आपने एक भी साइड सोल्व कर दी, तो मान के चले कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 60% मार्क्स तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे उसके आसपास हमारे पास। आउट ऑफ 10 6 आ गए। इन दिस केस वी कैन सोल्व फुल्ली, नो प्रॉब्लम। ये तो हमने किया भी था ना वहां पे, ए बी सी, ये चल दीजिए यहाँ पे दिस वन। एक बार पाथ ले लेंगे क्या, ओ ए बी, एक बार ले लेंगे क्या, BCO.
सोल्व हो जाएगा। हाँ भाई, वेरीफाई करके दिखा दोगे? कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। भाई क्लियर है क्या? आपको ही करना पड़ेगा इसमें ज्यादा, मैं तो आपको प्रोसीजर बता दूंगा ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल है, कम से कम हमें थ्योरम याद हो जाए, कुछ क्वेश्चंस हो जाए, थोड़ा सा एटलीस्ट इवेल्युएट हो जाए। मैं क्या चाहता हूँ, इवेल्युएट मतलब एनी वन इंटीग्रेशन कोई भी सोल्व हो जाए जो आपको इजी लगे, जिसमें भी आप चल सकते हो। तो ये इसमें 4-5 फिगर है, इसकी स्टैंडर्ड फिगर जो आपका दिया हो सकता है, जो मैंने आपको बताया ऊपर में बताया था ना अभी आपको। सर्किल हो सकता है, डिश सर्कुलर डिश हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है ना। ये दो पैराबोला वाले हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो सकते हैं 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में हेमिस्फीयर हो सकता है आपके पास, क्यूबॉइड हो सकता है आपके पास, एंड ये हो सकता है सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। ओके। बहुत रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी ना लगा के, मिनिमम एनर्जी लगा के फिलहाल हम केवल थ्योरम समझ ले, थ्योरम का स्टेटमेंट और जहां तक हो जाए उतना कर ले, और उसको लास्ट स्टेज के लिए फिर छोड़ दे कि बाद में देखेंगे जब हमारा बाकी हो जाएगा, बाकी पार्ट हमारा कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये इसका आंसर पूरा सही, बहुत कम ही चांस है कि इतने सारे इंटीग्रेशन करके पूरा आंसर सही आ जाए। क्यों? लेकिन आता है, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा। इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा अपना वो एनर्जी नहीं लगाता हूँ। हाँ जी, हाँ बेटा, ऑप्शन में आएगा। कौन सा? लिमिट तो पढ़ा होगा ना 12th क्लास में, कर दो। नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जितना है उतना कर दो, है ना। जी। कभी कभी आ जाता है उसमें, ऐसा कोई अभी ज्यादा वो आया नहीं है ना। अगर आ जाए तो आपको एल हॉस्पिटल रूल, कोई भी रूल लगा के सोल्व कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ 12th वाली प्रॉब्लम नहीं, एल हॉस्पिटल रूल तो पढ़ा होगा ना। हाँ लगा सकते हैं आप, ओपन लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता ही है कि इस बार के हिसाब से अब कितना कर सकते हैं, तो हम जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर रहे हैं ना। ये भाई आपके पास x0, y0, z0, x2, y2 एंड ये आपका z इक्वल टू 2, ये क्यूब है, ठीक है। अबव एक्स वाई प्लेन कह रहा है तो सेम ही आएगा, इसके हिसाब से चलना है। अब इसे बताया, देखिए इज ओपन सरफेस, तो मैंने जैसे आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट वी विल टेक द लोअर सरफेस एज द ओपन सरफेस। लोअर को आप ओपन मान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो इसमें ऐसे ले लीजिए फिगर, इसमें पहले की तरह फिगर बना, यहाँ बना देते, ये मान लीजिए। चलो, ये आता हुआ तो आपको बनाना कि नहीं? वेरी गुड, तो ये बना दे दिस वन। ये होगा, ठीक है ना। देखिए, विल टेक दिस ओ, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, इसको ले लेते हैं जेड एक्सिस,
ओके, ओ Yes, sir. ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर? अब यहां से लेके चलते हैं अबव सरफेस, इसको मान लेता हूं S2। ठीक है, जो लेफ्ट वाली सरफेस है दिस वन, इसको मान लेते हैं S3। अपोजिट मान लीजिए S4। ठीक है, आउटर जो सरफेस है, आउटर, आउटर का मतलब समझ गए, ये ले लेते हैं OCFG, इसको मान लीजिए S5। और ये जो बाहर वाली सरफेस है आपके पास ABED, इसको मान लीजिए S6। क्लियर है क्या? हाँ भाई। Yes, sir. यानी जो आपकी लोअर सरफेस है इसमें मान लेते हैं यहाँ पे दिस वन, लाइक दिस इज द लाइन इंटीग्रल। S1 किसको माना जाता है? S1 छोड़ दिया, नीचे वाली सरफेस थी S1, जो ओपन ठीक है, सरफेस है उसको लेना नहीं है। ठीक है। ओपन पे तो नहीं आएगा ना इंटीग्रेशन। Yes, sir. तो इन दिस केस वी विल फाइंड आउट 4 लाइन इंटीग्रेशन एंड 5 सरफेस इंटीग्रेशन, देन वी कैन वेरीफाई द थ्योरम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ भाई। Sir, फिर से बोल रहे हैं एक बार? वो लाइन इंटीग्रेशन वी विल फाइंड आउट। अगर हम लाइन इंटीग्रेशन की बात करें तो लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज हो जाएगा OA प्लस AB प्लस BC प्लस CO, यही तो होगा। हाँ भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, ये हो गया। yes, sir. और ये जो आपका सरफेस इंटीग्रेशन है, कर्ल F डॉट n कैप ds, ये जो S सरफेस है ये क्या होगा, दिस इज द सम ऑफ द 5 सरफेस, पांचों सरफेस के इंटीग्रेशन का सम। क्लियर है क्या? S इज Yes, इक्वल sir. टू डबल इंटीग्रेशन S1 तो हमने छोड़ दिया था, S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। क्लियर? इसलिए मैंने क्या किया, सरफेस को अपोजिट सरफेस लिया है। अपोजिट सरफेस आमने सामने लेने से क्या होगा, जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा काम करना आसान होगा। जब S3 और S4 लेंगे तो आसान होगा ना। S3 S4 में क्या डिफरेंस आएगा, S3 S4 में आपके पास ये y एक्सिस का चेंज आ जाएगा, इसमें x एक्सिस पर जो आपकी सरफेस आएगी, ठीक है ना, बाकी चीज तो सेम रह जाएंगी। मेरी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखिए, मुझे लिखना है इसका आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस के हिसाब से, S2 S3 S4 S5 S6, आउटवर्ड नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल बताओ क्या होगा। S2 S2 का ऊपर वाला सरफेस, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। हाँ भाई। Yes, sir. Yes, S3 का बताएं, S3 का क्या होगा, sir. Minus माइनस I। I. S4 का I, I. इसलिए मैंने अपोजिट सरफेस लिया ताकि इजी रहे हमारे लिए ना। S5 माइनस J, S6 प्लस J। क्लियर है क्या? हाँ भाई, Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. When we will talk about S2, in that case we will take Z इक्वल टू 2 ले लेंगे। S2 पे Z की वैल्यू तो 2 रहेगी पूरे इंटीग्रेशन की, Yes, sir. एंड लिमिट आपके फाइंड आउट हो जाएंगे डबल इंटीग्रेशन से, 0 टू 2 0 टू 2 आएंगी दोनों की। हाँ भाई, क्लियर है क्या? X भी 0 टू 2, Y भी 0 टू 2, सही है क्या? अगर Yes, S3 sir. की बात करें, S3 पता है S3 में क्या होगा, विच वन इज 0, X0, Y की लिमिट आ जाएगी Y इक्वल टू 0 टू 2 एंड Z इक्वल टू 0 टू 2, लाइक दिस। फाइंड आउट हो जाएंगे सारी सरफेस पे। Yes, sir. अरे भाई, इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो पाएंगे कैसे? हो जाएगी। Yes, sir.